जर्नलिज्म से अचानक कास्टिंग, ये डाइवर्जन कैसे हुआ? I mean, it was not an easy decision. It was a very thought about decision. But it started off as just a random offer from Mr. Vikram Bhatt, who offered me to set up a couple of films for him. तो आपने कुल मिला के अब तक 60 प्रोजेक्ट्स किए हैं एंड 20 आर्टिस्ट को एक्चुअली लॉन्च दिया है आपने। एक्चुअली ये पूरा जो प्रोसेस है, एंटायर प्रोसेस इज़ वेरी क्रिएटिवली सेटिस्फाइंग। ये जो इनिशियल डेज की जो मेरी फिल्म्स थी, वो टाइम था जब बहुत सारी नई फिल्में बन रही थी, नए एक्टर्स आ रहे थे, तो आई वॉज प्रॉब्ली ब्लेस्ड कि मुझे वो चांस मिला, मुझे वो मौका मिला टू गिव ब्रेक्स टू अ लॉट ऑफ पीपल. I mean, not necessarily I've discovered a lot of them in my films, and a lot of them are doing so well. So Correct. From Kiara to Survi to Karan to Kundra. Yeah, a lot of them. As a casting director, when you are casting someone, आप वो look fit होने पे ज़्यादा focus करते हो कि the art of it? The first and the foremost. Hi guys, welcome to another episode of 4 PM Bollywood और मैं हूँ आपकी होस्ट हर्षिता। हर एपिसोड में मैं लेकर आती हूँ नए एक्टर्स, नए सेलिब्रिटीज़। लेकिन ये एक्टर्स को एक्टर बनाता कौन है? अगर उन्हें काम ही नहीं मिले तो वो अपनी एक्टिंग कहाँ दिखाएंगे? तो उनको काम देने वाले जो एक्चुअल करता धरता है, जो होते हैं कास्टिंग डायरेक्टर। आज हमारे साथ एक बहुत ही मशहूर सेलिब्रिटी कास्टिंग डायरेक्टर है जिनका नाम है कुणाल एम शाह, और हम सुनेंगे उनकी जुबानी क्या कुछ चलता है कास्टिंग में। So hi Kunal, welcome to 4 PM Bollywood. Thank you Harshita, and thank you for such a elaborated introduction. You're welcome. कुणाल, मैं आपको जानती हूँ, आई थिंक जब मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया था 15 साल पहले, मेरी इंटर्नशिप थी, तभी आप एक जर्नलिस्ट थे मुंबई मिरर के साथ। जर्नलिज्म से अचानक कास्टिंग, ये डाइवर्जन कैसे हुआ? Oh God, that's a long journey. My God. I think, it was not an easy decision. It was a very thought about decision, but it started off as just a random offer from Mr. Vikram Bhatt, who offered me to set up a couple of films for him. He's a very dear friend of mine, and he's also my mentor because he's the one who actually saw the casting director inside me. And I was also quite bored with journalism, to be honest. And I just come out of Mumbai Mirror, and I was working in another publication where creatively I was nowhere. So I just took it up as a challenge, and there was this film called Dangerous Ishq. So that was my first film, and that's how Vikram sir kind of gave me like an idea of the film and gave me some 20-pager to read and told me to set it up because it was a difficult film from the point of view that there were a lot of actors and a lot of because it was supposed to be 4 different births of the characters. So while the girl was Karishma Kapoor, who was the same, the person she fell in love with were different people. So it started as quite a difficult one, but we managed to do a good one, and that's how it started. So डेंजरस इश्क से आपकी जर्नी शुरू हुई कास्टिंग की? यस, और उसके बाद मैंने विक्रम सर के आई थिंक 14-15 फिल्में की बैक टू बैक, एंड दैट वाज लाइक माय किक स्टार्ट दैट प्रॉब्ली आई नीडेड, और इसलिए मैंने फिर मैंने जर्नलिज्म को बाय बाय कर दिया और कास्टिंग को हेलो कर दिया। यस। तो आपने कुल मिला के अब तक 60 प्रोजेक्ट्स किए हैं एंड 20 आर्टिस्ट को एक्चुअली लॉन्च दिया है आपने। हाँ जी। कैसा रहा ये पूरा 60 मूवीज जब कंप्लीट करके, जब आप किसी को लॉन्च करने का वो एक रखते हो, यू नो, इट फील्स लाइक प्रिविलेज कि आपने किसी को एक नया स्ट्रीमलाइन लाइक करियर लाइन दिया। हाउ डज दैट फील? इट फील्स गुड। एक्चुअली ये पूरा जो प्रोसेस है, एंटायर प्रोसेस इज़ वेरी क्रिएटिवली सेटिस्फाइंग, एंड जस्ट बिकॉज आई स्टार्टेड माई करियर विद द Bhatts, Vikram sir and Bhatt साहब, and I did a lot of films with Vishesh Films also. So ये जो initial days की जो मेरी films थी, the 2014, 15, 16, वो टाइम था जब बहुत सारी नई फिल्में बन रही थी, नए एक्टर्स आ रहे थे, तो आई वॉज प्रॉब्ली ब्लेस्ड कि मुझे वो चांस मिला, मुझे वो मौका मिला टू गिव ब्रेक्स टू अ लॉट ऑफ पीपल. I mean, not necessarily I've discovered a lot of them in my films, but there are a lot of people who come through different people. मतलब
Correct. It's not that I have probably discovered them from scratch and made them a star. ऐसा होता नहीं है. ये कहानियाँ सुनने में अच्छी लगती है, बट हकीकत में ऐसा होता नहीं है. Yes. But yeah, मतलब there was, because there were the first auditions I've done or the first meetings I've done. So from a different point of view, they have made their debuts respectively उन फिल्मों में जो फिल्में मैंने कास्ट की है. So and there, a lot of them are doing so well. So Correct. from Kiara to Surveen to Karan Singh to Grover, Kunal Kundra. yeah, a lot of them. So and they're all my friends, and so it feels nice. You feel happy. More than that, there are so many smaller actors, छोटे actors जो 2 scene, 4 scene, 5 scenes में मैंने अपने फिल्मों में किए, and they are also doing so well. So many of them, Kumar Saurabh, Ashwath Bhatt, just brilliant actors. तो ये सब की भी पहली फिल्में मैंने तो कहाँ से ढूंढ के, तो बहुत मज़ा आता है. And I meet them now, and they say that they're doing XYZ films and they're doing XYZ web shows, and they always come and say hi to your offices. So अच्छा It लगता है. feels great, of Yeah, course. अच्छा लगता है because आपने कास्टिंग की है फगली की, हाँ जी, हाँ एंड जी. दैट वाज द फर्स्ट फिल्म ऑफ कियारा अडवाणी. हाँ जी. एंड उनके ऑपोजिट थे मोहित मारवाना. हाँ जी. मोहित मारवाना का तो ऑब्वियसली काफी कनेक्शंस है, yeah, सारे yeah. कपूर्स कजिन्स हैं हाँ उनके. जी, हाँ जी. कितना डिफरेंट है एक आउटसाइडर और एक इंडस्ट्री पर्सन को एक साथ कास्ट करना. See, I'll be very honest. क्या हुआ था कि जब ये फिल्म मैंने साइन की, कबीर सदानंद जो डायरेक्टर है वो, उनको मैं मिला था और मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, उन्होंने कहानी सुनाई थी. वी वर लुकिंग फॉर ए गर्ल जो एक दिल्ली की लड़की है बट बहुत अच्छी लड़की है. सो अभी फगली के 11 साल पूरे हुए एक्चुअली, जस्ट कुछ दिन पहले, और मेरी कबीर से बात हुई तो मोहित वॉज ऑलरेडी इन द फिल्म. मोहित और विजेंद्र ऑलरेडी फिल्म में थे. ओके. So I came on board तब. So it was supposed to be Mohit's launch film, as we all know, and also Vijayendra Singh was a very high, he's a high profile, a very respected boxer in our country. So it was not easy. And मैंने किया रौसम आलिया था उस समय से, आलिया अडवाणी, और उसके पिक्चर्स मैंने देखे. मैं एक दूसरी फिल्म करने वाला था दीपक तिजोरी के साथ, जो फिल्म अनफॉर्चुनेटली बनी नहीं. उस फिल्म की कास्टिंग के दौरान कियारा के पिक्चर्स मिले थे मुझे थ्रू समवन, एंड दैट फिल्म डिडंट वर्क आउट फॉर व्हाटएवर रीज़न. वो एंड आई रिमेंबर हर पिक्चर्स एंड दैट्स हाउ आई टुक हर नंबर फ्रॉम अनुराधा पटेल जी, जो कियारा की आंट है, एंड अ वेरी फेमस एक्ट्रेस ऑल्सो, और who played her mother in Satya Prem ki Katha. Now after so many, I mean, life comes in full circle. Full circle, yeah. And उनसे नंबर लिया मैंने, उनसे बात की, और she was not very, she was not sure. Finicky about. Yeah. And but I was very convinced, and Kabir was also very convinced once he saw the pictures. But she refused to take my call after that. She was just not taking my calls. It was very funny, and I sent her quite a few texts, but so I told Kabir, somehow she's not convinced. I don't know what is it. So आप उसको फ़ोन करो. And Kabir, somebody from Kabir's office called her, and she came to meet Kabir, and and they all just worked out. She auditioned at Kabir's office only, and I was there in the other room. She didn't know. And the funny part was कि जब ये फिल्म कंप्लीट हुई और इस फिल्म का प्रमोशन का, तब मैं एक और न्यूज़पेपर में काम कर रहा था. Absolutely, yeah, ma'am. When this film was releasing, and they'd come to promote the film there, and one of the reporters in the team asked her, "How did you get the film? How did you get your first film?" And she said there was this very, very, very kind journalist who sent my pictures to Kabir, and Kabir called me and whatever, and the same story she repeated, and that's when Kabir introduced, "This is that guy." Oh. This is the casting guy. So Fagli, actually, I was created as casting consultant, not as a casting director, because I didn't cast all the actors. Correct. As you said, Mohit पहले से launch थी. Yeah. So Arfi and a lot of other actors I did cast, but a lot of actors I not. So I was more created as a casting consultant in the film, and yeah, that's how it is. तो बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि कियारा के फोटोज देख के आपको लगा that she fits the bill. Yeah. As a casting director, when you are casting someone, आप वो look fit होने पे ज़्यादा फोकस करते हो कि the art of it? The first and the foremost is always the look. You have to look the part. जैसे ही आप उस पार्ट में लगते हो, उसके बाद आपका परफॉर्मेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका
जो भी हार्ड वर्क, मेहनत, जो भी। सो जब हम ऑडिशन भी करते हैं, जब किसी को भी टेस्ट करते हैं, हम लोग सबसे पहले वही देखते हैं जो ऑडिशन करने आ रहा है वो कितना प्रिपेयर्ड है, कितना लुक में आया है। हाफ योर बैटल इज़ वन, बिकॉज देन यू कैन इमेजिन द एक्टर कि ये ऐसा लग रहा है। अब जब आपने इमीडिएटली इनिशियली बांध लिया हमको स्क्रीन पे, तो हम देखेंगे इसका परफॉर्मेंस कैसा है, कितना टैलेंट है, कितना बाकी नहीं। तो डायरेक्टर्स आई थिंक वो निकाल ही लेते निकाल लेते हैं। अगर आप उसमें टैलेंट है तो फिर वो हो ही जाता है। करेक्ट। या और मेहनत है की है, उसने प्रिपेयर किया, अपनी लाइन्स प्रिपेयर की है टेस्ट में, तो सब हो जाता है। सो जैसे कि कमर्शियल फिल्म्स भी है जो आपने कास्टिंग की है, लाइक फतेह, एंड देन देयर आर OTT प्लेटफॉर्म सीरीज Yeah. ऑल्सो जो बहुत ही कल्ट है, जिसमें Yeah. एक्टर्स है। हाँ, वो कैसे आप तराशते हो जो कल्ट कास्टिंग होती है, नॉट नोन एंड एक प्रॉपर कैरेक्टराइजेशन वाली? So my process is very simple, एकदम बेसिक प्रोसेस है मेरा। I like to read. I read and read. So जब वो स्क्रिप्ट आती है तो मैं 2 बार 3 बार 4 बार उसको पढ़ लेता हूँ 2-3 दिन में, और अपने नोट्स बना लेता हूँ, और उस कैरेक्टर के न्यूएंसेस पे काम करके जो भी जिन एक्टर्स को मैं मिला हूँ या जिन एक्टर्स को मैं जानता हूँ या जिनके इंटर ऑडिशंस हमारे ऑफिस में आते हैं या ऑफिस में एक्टर्स आते हैं, उनको इमेजिन करके फिर उनको बुलाता हूँ ऑडिशन करने के लिए। मैं, मेरी टीम सब, मतलब इट्स नेवर गोइंग टू बी वन पर्सन या पूरा। तो देन हम लोग बैठ के उस ऑप्शंस को देखते हैं, उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं, उनको टेस्ट करते हैं, और उसमें हमेशा 1, 2, 3 ऐसे कमाल के एक्टर्स मिल जाते हैं जो जो सडनली एकदम दे जस्ट शाइन, बिकॉज नाउ दैट सडनली व्हेन यू सी बहुत ही अच्छा कोई एक्टर देखते हैं और बोलते हैं अरे ये तो कहाँ से आ गया, ये कहाँ से नहीं आता, ये तो होता ही है हमेशा एक्टर, क्योंकि आज 50 साल की उम्र में तो पैदा नहीं हुआ है वो, बट वो है। लेकिन इट्स जस्ट दैट कि ही गॉट द राइट ब्रेक और द राइट पाथ या राइट रोल एट दिस टाइम, दैट्स व्हाई ही इज हियर, दैट्स व्हाट वी आल्सो डू। करेक्ट। So my process is simple: read and read. Simple. I love reading my scripts. I love making my notes. I love imagining and placing the actors in my mind and then call them. Executing. Yeah. ग्रेट। आपने सुरवीन चावला को भी लॉन्च किया है, एंड अलॉट आउट ऑफ दोस 20 पीपल ऐसा कोई ऐसा एक्टर हो जो आपने लॉन्च करने वाला, लाइक ओके, मतलब लाइक थोड़ा अनकन्वेंशनल, लाइक पीपल डिडंट बिलीव इन यू बट आपको लगा नहीं ये करें एंड इट एक्चुअली वर्क? It happened many times, but it's not right to take names because वो सारे फिल्म मेकर फिर मुझे वापस बुलाएंगे नहीं। बट ऐसे बहुत बार होता है। सी एवरी एक्टर, स्पेशली जब वो लीड एक्टर होता है, जब वो फिल्म को ड्राइव करता है, तो लॉट ऑफ थिंग्स राइडिंग ऑन दैट पर्सनस शोल्डर, एंड उसमें हमेशा बहुत बैक एंड फोर्थ होता है, और बहुत बार जो फिल्म मेकर है वो, जैसे मैंने बोला कि मैं भी पढ़ के इमेजिन करता, एक्टर्स वो भी जब लिखते हैं अपनी फिल्म तो वो किसी को इमेजिन करते हैं, और वो जिनको इमेजिन करते वो उनके दोस्त एक्टर्स आर स्टक इन देयर हेड। सो उस जो एक्टर उनके दिमाग में जिसकी छवि बनी हुई है उससे निकलने के लिए बहुत टाइम लगता है उनको, और वो स्टक है वहाँ पे। तो आप कितने भी अच्छे एक्टर देते हो, जब उनके दिमाग में एक एक्टर बैठा हुआ है वो उनको वही चाहिए होता है, जो बहुत रीजन से पॉसिबल नहीं होता है, डेट्स, मनीज, व्हाटएवर, इंटेंट, अवेबिलिटी, एवरीथिंग। तो बहुत टाइम के बाद उनके दिमाग से निकल के दूसरे एक्टर को फिट करना पड़ता है। It's like removing something from somebody's brain, taking him out of his muscle memory and pushing it. Yeah, so it's a process. So वो हमेशा कोई भी एक्टर कभी भी बहुत आसानी से कास्ट नहीं होता है। अगर कोई फिल्म में करा के बोलता है यार हमको ना अच्छा एक्टर ला के, हमने उसको शाहरुख खान भी ला के दिया तो बोलेंगे यार आमिर नहीं मिलेगा, सलमान नहीं मिलेगा। That's how people are greedy and that's how it should be. Because nothing is more important than your film. So the best for the film always. That's what it is. मैंने हीरोइन मूवी देखी थी एंड वहाँ पे ना एक डायलॉग था कि लोग तुमसे नहीं तुम्हारी पोजीशन के वजह से है। Absolutely. आप एक जर्नलिस्ट भी रहे हो और एक कास्टिंग डायरेक्टर, कैसे लोगों का बिहेवियर चेंज हुआ वो मुझे जानना है। चेंज हुआ, सी आई टेल यू वेरी वेरी ऑनेस्टली, मुझे अपने माइंड में पता था कि देयर विल बी अ सर्टेन लेवल ऑफ पीपल हु विल डिसअपीयर फ्रॉम माई लाइफ, पीपल हुम यू मीट on a daily basis, you party on a daily basis, you socialize on a daily basis, who are your filmy friends. That's why हम लोग कहते हैं filmy friends. और जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया विद ऑल दिस फिल्म्स, तब
मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट भी था कि मैं तो इतने लोगों को जानता हूँ, मुझे बहुत कम मिलेगा, मुझसे ये सारे जो मेरे दोस्त हैं इन सब की फिल्में मिलेगी। तो बट उनमें से एक भी फ्रेंड ने मुझे फिल्म नहीं दी। मैंने माई इनिशियल 14, 15, 20 फिल्म्स या जो भी मेरे 20, 25, 30 प्रोजेक्ट जितने भी मैंने किए उसमें से एक भी मेरे दोस्त नहीं, एक्सेप्ट विक्रम भट्ट जिन्होंने मुझे एक्चुअली कास्टिंग बनाया, और उन्होंने बहुत सारी फिल्में दी, बट उसके बाद जितने प्रोजेक्ट्स मैंने किए उसमें से एक भी फ्रेंड नहीं था। और जितने दोस्तों थे उसमें से 80% ने आज तक मुझे काम नहीं दिया है। जो आज भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इंक्लूडिंग वहाँ जहाँ आप भी काम करते थे, वो भी मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसने भी मुझे अपनी एक भी फिल्म नहीं दी। Ouch. Yeah, well, although eventually you realize and you understand that, you know, कि I might have been a very good journalist. I need to prove myself as a casting director because it's a different world. So I think the day and the moment I'll be able to convince people that I'm a good casting director, I'm sure all these people will come to me. My friends will also. सूरज को तो सलाम है. Yes, it's not just that. I think, see, like I said, it's up. The most important thing for everybody is their film. When they know that there are 5 better people than me who are doing the same work, they will obviously go to them. Right. The day they feel that I am one of those 5, they will call me. As simple as that. I have to take it as a challenge. I have to take it as something which should motivate me to do better. Or I'm sure वो होगा. I think I also found my path and I'm doing some good work. Yeah. अब तो आप हार्डकोर कास्टिंग करते हो, हाँ ठीक जी। है, बट काफ़ी सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स जिनसे मैं मिली हूँ, यू नो, वो आते बॉम्बे एक्टर बनने, हाँ। फिर वो कास्टिंग असिस्टेंट्स बन जाते हैं, फिर कास्टिंग डायरेक्टर बन के काफ़ी अच्छे कॉन्टैक्ट्स हो जाते हो, फिर फाइनली रियलिटी शोज वगैरह। क्या आप भी ऐसा कुछ इंटेंट करते हो? मैं आपको देखूंगी नेक्स्ट सीजन ऑफ एनी रियलिटी शो। No. You will never see me acting, you will never see me directing, you will never see me producing. I'm very happy doing what I'm doing. Like I said, कि मुझे बहुत टाइम के I found my path and I'm really enjoying what I'm doing. So I have no intention of acting. I have no intention of going to any reality show. Nothing. Absolutely never. Purely in love with your Purely in craft. love with my craft. I know ये आते हैं because I know so many of them, from Mukesh to Jogi ji to Abhishek to all of them. Correct, exactly. Yeah, even मेरे जो assistants हैं, जो मेरे 7-8 असिस्टेंट्स मेरी टीम में हैं, जो जिनको एक्टर बनने हैं और वो एक्टिंग करते हैं, और जैसे ही कोई स्क्रिप्ट आती है इसके ऑडिशन करते हैं, वो आते हैं चुपके से, सर ये वाला मैं कर लूँ, इसका मैं टेस्ट कर लूँ टाइप। सो आई नो, आई अंडरस्टैंड, एंड इसलिए वो कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस में भी काम करते हैं कि वो सीखे कैसे ऑडिशन होते हैं, कैसे क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। फेयर इनफ। बट आपको कभी वो नहीं था कि मैं भी फेमस बनूं? नहीं, सब बहुत बार हुआ, जब मुझे बहुत सारे लोग जिनके साथ मैं काम करता हूँ बोले ये रोल तू कर ले, ये 2 सीन तो कर ले, ये 3 सीन तो कर ले। इनफैक्ट एक फिल्म मैंने अभी की है जो उसमें डायरेक्टर ने चुपके से मेरा फोटोग्राफ यूज़ किया है। तो फिल्म भी रिलीज नहीं हुई, बट उसने अपने वो एक सीन है जिसमें बाइक के पीछे एक वो जो मिनिस्टर टाइप जो नमस्ते करके खड़े होते हैं, वैसा फ़ोटो लेके फोटोशॉप करके डाल दिया है। तो मैंने भी but that's okay. I mean, yeah. But I don't think I'm going to act or never. आपकी एक कोचिंग क्लासेस भी है, आई बिलीव, तो व्हाट इज द मॉड्यूल लाइक? एंड It's not a coaching class, to be honest. We do acting classes. सब लोग सारे कास्टिंग डायरेक्टर जो करते हैं, तो I feel कि because of and I do these classes with Hemant Kher sir, who is a NSD alumni. मेरा और हेमंत सर हमने एक वेब सीरीज़ की थी 2-3 साल पहले, तब मिले थे, कॉल्ड ट्रैक डाउन, अपूर्व लाखिया की वेब सीरीज़। और अभी हमने एक फिल्म कंप्लीट की है, एक रुका हुआ फैसला की ऑफिशियल रीमेक। तो हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई तकरीबन 1 साल पहले और 1.5 साल पहले, और ही केम अप विद दिस आइडिया एंड आई वाज ऑलवेज अगेंस्ट इट, सेइंग कि मैं इतना एक्सपर्ट, आई एम नॉट एन एक्टिंग गुरु और एक्टिंग एक्सपर्ट कि मैं जाके किसी को कोच करूँ। बट देन ही कन्विंस मी विद द आइडिया दैट आई शुड प्रॉब्ली help these actors find a part to audition people, to meet people, to network, कि कैसे ऑडिशन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मतलब कैसे लोगों को रीच आउट करना चाहिए। एंड ही वॉज द वन हु विल एक्चुअली टीच द न्यूएंसेस और जो एक्टिंग की छोटी छोटी चीज़ें होती है वो सब। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। एंड आई थिंक बिकॉज हम लोग के पास इतना एक्सपीरियंस है, इतने साल से, अभी इन इंडस्ट्री फॉर 26-27 years now. So it's just like a way of giving back, yeah. So we don't do like a full-fledged coaching class. We do a 10-day workshop every 3-4 months, एक बार. Okay. Yeah, and we take only 10 students per
per class, Batch, okay. per batch. Yeah. Great. Yeah. So because I think उसके ऊपर फिर वो will not be able. Personal, you cannot have a look on it. Yeah. Interesting. Yes. एंड अभी जैसे ये इंस्टाग्राम जनरेशन हो गया, लास्ट 5 साल में काफ़ी कास्टिंग कॉल्स चेंज होता है कि फॉलोअर्स नहीं है या समवेयर, क्या वो आप भी अभी कंसिडर करते हो या फिर इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट व्हाट ब्रीफ दे हैव गिवन? सी एटलीस्ट 80-90% टाइम ऐसा होता नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, बट हाँ 10-15-20% ऐसा होता है जहाँ पे लोगों के फॉलोअर्स देखे जाते हैं. बट आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दैट. आई थिंक एन एक्टर should be an actor first rather than an whatever influencer or whatever. क्योंकि हाल ही में मैंने जितनी भी, सॉरी टू कट यू, बट हाल ही में जितनी भी सेकेंडरी कास्टिंग मैंने देखी है OTT शोज पे, I've landed अरे इसको तो इंस्टाग्राम पे देखा है, इट हैज बिकम लाइक सेकेंडरी कास्ट, वो लोग उनको ही ले रहे हैं. आई थिंक इट्स अ टू वे स्वॉर्ड. एक तरह से लोग बहुत पॉपुलर भी हो रहे हैं इंस्टाग्राम के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू, एंड दे आर गेटिंग लॉट ऑफ रिकग्निशन. दे आर ऑल्सो मेकिंग लॉट ऑफ मनी रादर देन रोमिंग अराउंड एंड डूइंग rubbish things. But on the other hand, they are also this small term phase of their life they are considering is to be everything. So they don't come to auditions, they don't prepare, they don't do their homework, they're not in their costumes. because उनको लगता है कि हम इतनी मेहनत करके उनके ऑफिस जाएंगे, ऑडिशन करेंगे, फिर हमको मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर पैसे इतने मिलेंगे, हम लोग एक पोस्ट कर देंगे हमको इतना पैसे मिल जाएंगे. करेक्ट. तो ये जो थॉट प्रोसेस है ना, ये दिस इज व्हाट इज डैमेजिंग देम. प्रोफेशनलिज्म थोड़ा सा है ही नहीं एक्चुअली. आई वाज it's जस्ट getting it's good. हाँ, even I know, I mean we all want to put it in a very Subtle way. diplomatic and subtle term, but this is what even we face. We follow up to the actors because we feel ये बहुत करेक्ट है, इस रोल के लिए बहुत अच्छा लग रहा है और ये करेक्ट है, मतलब ये we should definitely test him, but वो आते ही नहीं है. वो बोलते बिजी है, बट हम उनको हमेशा इंस्टाग्राम पे रोज पोस्ट कर रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, रील्स बना रहे हैं. But that's a sad reality. So अभी जैसे आप कास्टिंग कर रहे हो प्रोजेक्ट्स के लिए, सबसे डिफिकल्ट ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट रहा था जिसके लिए आपको कास्ट करना था? आई थिंक दिस फिल्म कॉल्ड लाल रंग जो मैंने की थी कुछ साल पहले. सैयद अहमद अफजाल ने बनाई थी और रणदीप हुड्डा प्लेड द टाइटल रोल इन द फिल्म. उसमें बिकॉज मैंने उसके पहले भी एक फिल्म की थी कॉल्ड यंगिस्तान, जिसमें जैकी या उस फिल्म की भी कास्टिंग बहुत अच्छी हुई थी और वो फिल्म भी बहुत अच्छी थी. सो आई रियली गॉट अराउंड विद अफजाल वेरी इज़ वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड टुडे. और व्हेन लाल रंग came to us, so it was a very difficult film to cast because it was based on a partial real story of a guy from Haryana, and Randeep thankfully agreed to play the part, so we all were very happy. But उसमें जो characters थे वो बहुत difficult थे, so उनको कास्ट करना बहुत चैलेंजिंग था और बहुत लंबा और टीडियस प्रोसेस था. जैसे उसमें कैरेक्टर कॉल्ड ड्रैकुला, तो we used to call him, he was called Dracula in the film because वो खून की चोरी करता था. तो ब्लड बैग्स की चोरी करता था. दैट वाज ही वाज नेम. सो वी वांटेड ए गाय जिसको देख के लगे कि यार इसमें खून ही नहीं है. सो वी कास्ट एन एक्टर कॉल्ड अभिमन्यु अरुण, वो दिल्ली थिएटर का एक्टर है जो पूरा वाइट है. ओके. सो यू लुक एट हिम, यू फील कि इसके अंदर से पूरा खून चूस लिया गया है. एनिमिक. हाँ. सो वी थैंकफुली वी फाउंड दैट एक्टर. फिर एक कैरेक्टर था बाबा करके, शनि बाबा, जो एक्चुअली है बहुत छोटा, बट पूरी फिल्म में वो जो बोलता है इट हैज़ लॉट ऑफ रेलिवेंस इन द क्लाइमैक्स. एंड ही वो रिपीटेडली रिपीट करता है कि मैं 100 साल से जवान हूँ. सो वी हैड टू मेक लाइक ए प्रोफेसी सेइंग काइंड ऑफ एन एक्टर, बट ही इज़ अ वेरी यंग बॉय. अच्छा. या बट ही इज़ 100 years old technically in terms of the narrative. So we cast the actor called Kumar Savrab. He's doing very well now. So this we found, one of my assistant found him actually eating a vada pav at a stall and got him. Wow. And he has the terms and condition to come and audition. कि मुझे ये मिलेगा तो ऑडिशन करूँगा, मुझे ये मिलेगा तो ऐसे ऑडिशन करूँगा. He is from MPHD Bhopal, Madhya Pradesh Drama School. So brilliant actor again. So ऐसे हमेशा मतलब ऐसे चैलेंजिंग तो बहुत कुछ होता है, but incidentally कुछ yeah, this one was very difficult because it was a difficult film to make. It was a very challenging film to make, and it had so many actors. So yeah, even the boy the other actor called Akshay Oberoi, who is again doing very well. Yeah.
So he's a very good-looking boy, and he's a Bombay South Bombay He Jew was, boy. I think, in that movie with Aishwarya Rai also. Yeah, Huh. yeah. So he was in a lot of Yeah. Inside Edge, Yes, whatever, correct. a lot of stuff. Fighter now. So he's a very good-looking boy. और हमारा जो character था was a son of a chaprasi, the lead boy. So the director had something else in mind, and he kept on saying कि यार ये तो मतलब कैसे लगेगा, because he's such a good-looking fair boy and he's a Jew Right. boy, Bombay boy. So Yeah. But so I shot 2 scenes with him, and there was a new girl we were introducing called Pia Bajpai. उन दोनों करके आराम नगर में 2 सीन शूट किए हमने कैमरा लेके, अच्छा. और फिर अफजाल ने देखे तो he was completely convinced after that. Wow. And hats off to both the actors also. They came so prepared and they looked the part. Got it. So ऐसे बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत सारी चीज़ें इनिशियल में बहुत गलत लगती है कि ये कैसे होगा यार, ये हो ही नहीं पाएगा, बट then Eventually things just fall when in if you're place. convinced and you do it the right way, हो जाता है. ये जो इंडस्ट्री होती है बाहर से लोग देखते हैं, बट एक्चुअली काफी PR ड्रिवन भी होती है. Of course. एंड ऑफ लेट ना एक हैक आया है कि अगर आप बहुत ज्यादा पैपराजी पेजेस पे दिखोगे तो कोई तो कास्टिंग वाला देख के आपको कास्ट कर लेगा. हाँ. हाउ ट्रू इज दैट? Not true. Absolutely not true. नहीं ना. See, I think क्या है, जैसे I think 15 साल पहले या 10 साल पहले ऐसा कि आप बॉम्बे टाइम्स में दिखोगे, करेक्ट. तो आपको फिल्म मिल जाएगी कि आपको कोई ना कोई एलिट हो, कॉल आप उस आएगा. गैंग में हो. Yeah. यस. Then there was a time when a lot of actors started saying that to not being featured on page 3, not necessarily Bombay Times or to be featured on the party pages is an achievement. कि हमको नहीं पेज feature 5 होता था फिर हाँ, उसके बाद. हाँ. यस. Similarly, now I think a lot of actors have realized not to be seen on this Instagram, on these photographers' pages is an achievement, because everybody knows it's paid. Yeah. Everybody knows how the whole system behind it works. But I don't know if I should say this, but yeah. So, but I don't think कि उससे आपको काम मिलेगा. हो सकता है कि because आप नोटिस में आ जाओ तो शायद आपको 1-2 ऑडिशन कॉल आ जाएंगे, बट अल्टीमेटली काम तो करना पड़ेगा, परफॉर्म तो करना पड़ेगा. करेक्ट. And if you can't चलने से perform, और कपड़े yeah. पहनने से नहीं होगा. नहीं होगा. A couple of them have really done well. Hats off to them. Yes, true. And they are doing reality shows and they are doing Correct. also acting gigs and all that. But ultimately, talent is not there. It's not going to go a long way. Yeah. So I think PR and talent both should go hand in hand. Yeah, you can do if you have talent. And if you are very good at your PR game and your marketing game and your networking game, then nothing can stop you. Nothing. You are bound to be a star. काफी इंसाइटफुल सीरियस कॉन्वर्सेशन कर लिया. अब हम करते हैं थोड़ा रैपिड फायर ऑफ फन. Yes, we should. Casting for OTT or films. OTT. One actor who gives you goosebumps every time they perform. Wow. KK Menon. Best debut performance in last 5 years other than your own projects. It's not a debut performance, but debut performance for Hindi. Suvinder Vicky in Cat and Kohra. Someone you discovered that you are most proud of. Kiara Advani. Method acting or spontaneous magic. Both. Mix of both. If your life was a film, who would you cast to play you? Rakesh Bedi. One actor on your dream to cast wish list. Wow. Kamal Hassan. Oh, very offbeat answer. I love him as an actor. I think he has a lot of intensity. So are you a fanboy also, or Yeah. one female actress that you are a fanboy of? Wow. Dimple Kapadia. Oh, okay. I am a 70s born. Fair enough. Yeah. जाते जाते सारे एस्पायरिंग एक्टर्स मॉडल्स को कुछ मैसेज देना चाहते हो तो प्लीज गो अहेड. Yeah. I would just like to say is that कि अपनी एक्टिंग में काम करो, मेहनत करो, रियाज करो, बी प्रिपेयर्ड व्हेन यू गेट एन ऑडिशन. पूरी मेहनत करो, लाइन से पढ़ो, उसकी बैक स्टोरी बनाओ, परफॉर्म करो अच्छे से. जस्ट कीप डूइंग दैट. जस्ट डोंट कीप ऑन सेइंग कि हमको काम नहीं मिलेगा. सिंपल. हम सबके लिए. सबके लिए. एक बात मैं बोलता हूँ कि जब वो आप किसी भी एक्टर को मिलो तो वो एक चीज़ हमेशा बोलता है, यार मैं तो एक्टर हूँ. शर्म क्यों आ रही है एक्टर बोलने में यार. बोलते ना यार मैं तो सिर्फ एक्टर हूँ. तो एक्टर है ना भाई. वाई डू दे ऑलवेज से लाइक दैट विथ लाइक ए सैड फेस, आई एम एन एक्टर. आई डोंट नो. आई थिंक आई एम एन एक्टर. Isn't it
The आई way थिंक वो आपके साथ ऐसे होता है क्योंकि मुझे जितने मिलते होते हैं मैं एक्टर हूँ ऐसे नहीं। बोलते हैं आपके सामने पपी फेस बनाते ताकि आप दया खा के काम दे दो शायद इसीलिए ऐसे हो रहा है मेरे साथ तो नहीं हुआ मेरे साथ तो चौड़े नहीं में यार चलते मैंने हैं बहुत देखा है आई नो प्रॉब्ली आई हैव नॉट लुक्ड एट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू यू आर सेइंग नाउ यू डू नाउ आई नीड टू कैच देम द ब्लफ yes Yes. they're acting actually in front of you yeah so anyway it was a very insightful thank you conversation so with you, much and for having me thank you here for coming thank you so much for having me here it was so much fun thank thank you you